story this evening continues to be from the state of Bihar. The high drama playing out in Bihar is about to reach its climax soon. If sources are to go by, Bihar Chief Minister Nitish Kumar is expected to submit his resignation to the governor tomorrow and take oath as the Chief Minister for an unprecedented 9th time as part of the NDA tomorrow itself. Sources also suggest that Sushil Modi and Renu Devi will be sworn in as the Deputy Chief Ministers. The Speaker will reportedly be from the BJP's side as well. Now, if Nitish Kumar does return to the NDA, it will be the 5th time that he would switch alliances in the last decade, a reason why he has also been given the moniker of Paltu Ram. Now, earlier today, the RJD held a meeting as well. Rahul Gandhi has reportedly reached out to Jitan Ram Manjhi, urging him to be part of the India bloc. Beyond all of this, LJP chief Chirag Paswan met with the Union Home Minister Amit Shah and BJP President JP Nadda. Let's also now take a look at the number game, because that's what it all boils down to. The Bihar Assembly has 243 seats and the majority mark is 122. Now, the Mahagathbandhan currently holds 160 MLAs, comprising 45 of the JDU, 79 from RJD, 19 from the Congress, 16 overall from the left and 1 independent MLA. Now, if Nitish Kumar leaves, the Mahagathbandhan will come down to 114 and they'll need 8 MLAs for majority in the assembly. On the other side, Hindustan Awam Morcha leader Shyam Sundar Soren has stated that their party will accept the decision of the BJP and the Prime Minister, which basically means that they are supporting the JDU and the BJP. And if the JDU does form the government with the BJP, it's 78 plus Nitish Kumar's 45 plus HAM's 4 MLAs will get them a comfortable 127 mark in the assembly, if all JDU MLAs remain intact, something that the RJD has been trying to break. नेचुरल अलायंस अपने आप वो नेचुरल डेथ उसका हो जाएगा। वो इसका मृत्यु तो पक्का था, नक्की था। अभी तो बिहार में हमारा कुछ रोल उसमें नहीं है, इसलिए जो झगड़ा वगैरह चल रहा है, जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन चल रहा है, अभिप्राय भेद चल रहा है, उनके कारण हो रहा है। हमारे तो ये परिवारवाद, भ्रष्टाचार, ये परम भ्रष्ट पार्टी, 2-3 पार्टियां जो है इंडिया अलायंस में, ऐसा बहुत है। इसमें बहुत ज्यादा भ्रष्ट पार्टी है, आरजेडी है और कांग्रेस है। ये भ्रष्टाचार का ये पूरा सब परिधि पार कर दिया है, तो इसलिए नीतीश कुमार उनके साथ नहीं रह रहे हैं। As what you say is nothing very visible, but something is happening. Let us see what happens till tomorrow. What says खेला होगा, that's what everyone says. Well, that is all what they can say now. बैठक बहुत सकारात्मक हुई, अलग अलग पहलुओं पे चर्चा हुई। हमारे पूरे विधानमंडल दल की बैठक थी। राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी भी थे, डिप्टी सीएम साहब थे, प्रदेश अध्यक्ष जी थे, राष्ट्रीय प्रधान महासचिव थे और एक विधायक और विधान पार्षद। बैठक में समकालीन राजनीति में जो चल रहा है, हर मुद्दे पे चर्चा हुई, चाहे राष्ट्रीय मुद्दे हो या राज्य के मुद्दे हो। उसके बाद चर्चा के पश्चात हर पहलू पे गंभीरता पूर्वक विश्लेषण के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे लालू प्रसाद जी को सब लोगों ने हाथ उठाकर अधिकृत किया। आज कल जो भी निर्णय आप संदर्भ में होगा, उसके लिए उन्हें अधिकृत किया गया। My colleague Saket is joining us for more on this political turmoil that is being witnessed in Bihar. Saket, हम और आप ये बात करते आ रहे हैं अभी तक कि क्या नंबर गेम है, क्या कुछ लेटेस्ट है। मीटिंग सारी हो गई है जेडीयू की, कल है एक लेजिस्लेचर पार्टी मीट, सुबह बीजेपी की स्टेट एग्जीक्यूटिव मीटिंग खत्म हो गई है, आरजेडी ने भी आज की थी। अभी श्याम सुंदर सोरेन का बयान आया है कि एचएएम भी बीजेपी और प्राइम मिनिस्टर का जो भी डिसीजन होगा उनके साथ जाएगी। क्या कुछ वहां पे चल रहा है अभी? देखिए, बैठकों का दौर तो खत्म हो गया है, लेकिन कल का दिन जो है वो उसी दिन, कल ही के दिन सारा फैसला होना है, क्योंकि कल बताया जा रहा है सुबह 10 बजे जब जेडीयू विधायक दल की बैठक होगी
उस बैठक पर सब कुछ डिपेंड कर रहा है कि उस बैठक में जेडीयू के कितने विधायक शामिल होते हैं, इस पर सबकी निगाहें हैं। और जेडीयू के सभी विधायक उस बैठक में अगर आते हैं तो उसके बाद हर विधायक का साइन लिया जाएगा। और फिर क्योंकि बीजेपी विधायक दल की जो बैठक हुई है उसमें सभी विधायकों का साइन, बीजेपी के जो सभी विधायक हैं उनका साइन ले लिया गया है, यानी कि एक जो स्वीकृति पत्र है वो बीजेपी के विधायकों ने दे दी है बीजेपी को। तो कल अगर नीतीश कुमार की जो बैठक है विधायकों की, उस विधायकों की बैठक में सभी विधायक पहुंचेंगे तो उनका भी लिखित एक लेटर जारी ले लिया जाएगा उनसे। और उसके बाद जो पत्र है वो राज्यपाल के पास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लेके जा सकते हैं, ऐसी जानकारी दी जा रही है। और नीतीश कुमार के पास जाने के बाद, राज्यपाल के पास जाने के बाद नीतीश कुमार अपना रिजाइन कर देंगे और उसके बाद जो बहुमत का आंकड़ा है उसका पूरा का पूरा जो नंबर है विधायकों का वो राज्यपाल को दिखाया जाएगा, कि राज्यपाल को बताया जाएगा कि हमारे पास पूरे नंबर है, इसलिए सरकार बनाने की हमें अनुमति दी जाए और फिर आगे वोट होगा। लेकिन ये तमाम चीजें कितना आसान होगा ये कल तय कर पाएंगे, क्योंकि कल बीजेपी जेडीयू की बैठक जब होगी उसके बाद सब कुछ साफ हो पाएगा। जी साकेत, अभी तक सोर्सेस के हिसाब से चलें तो ये भी सुनने में आ रहा है कि डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर्स जो हैं और स्पीकर जो है वो बीजेपी से होंगे और बीजेपी के साथ जब नीतीश कुमार अगर बनाते हैं सरकार तो एक कैबिनेट रीशफल होगा या फिर बीजेपी के मिनिस्टर्स स्वेरिंग इन में आएंगे और ओथ लेंगे। उस सब के बारे में कुछ डिटेल्स पता लग पा रही हैं अभी? था क्योंकि बीजेपी के साथ नीतीश कुमार की पहले भी सरकार थी, जब आरजेडी से पहले जब वो सरकार में थे उस समय बीजेपी थी साथ में। उस समय जो मंत्रिमंडल था लगभग उसी हिसाब से मंत्रिमंडल होगा, भले चेहरा बदल जाए लेकिन पद जितने विधायकों को मिला हुआ था वही पद उन लोगों को फिर से दिया जाएगा। हो सकता है कि उसमें चेहरे बदले हुए हो, चाहे वो स्पीकर की बात करें या 2 डिप्टी सीएम की बात करें, ये सब तय है कि ये होना है। लेकिन उसमें दूसरे नेताओं को जगह मिलेगी, जैसे पहले तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी को मुख्यमंत्री बनाया गया था, लेकिन इस बार उस जगह पर चेहरा दूसरा हो सकता है। हालांकि रेणु देवी का नाम अभी भी चल रहा है डिप्टी सीएम के तौर पर, एक और नाम दूसरा हो सकता है। उसी तरह स्पीकर विजय सिन्हा थे, उनके बदले कोई दूसरा नाम चेहरा हो सकता है। लेकिन ये सभी पद जो है वो बीजेपी के पास जाएंगे, इसमें कहीं से भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या कैसे होगा ये तमाम चीजें इसी पे डिपेंड कर रही है कि कल जब जेडीयू विधायक दल की बैठक होती है उसमें उस बैठक में से क्या निकल कर सामने आता है, उस बैठक के बाद किस तरह से मुख्यमंत्री का अगला कदम होगा, कैसे वो राज्यपाल के पास जाएंगे। और बीजेपी इसी वजह से अभी चुप है, एक भी नेता कोई कुछ इस मामले पर मीडिया में नहीं बात कर रहे हैं। वो जो भी कर रहे हैं वो बैठक कर रहे हैं, लेकिन मीडिया के सामने इस पर किसी तरह का कोई जवाब बीजेपी की तरफ से नहीं दिया जा रहा है। तो ये संकेत साफ है कि बीजेपी सिर्फ वेट एंड वॉच में है और जो चीजें तय हो गई है वो अब नीतीश कुमार को कदम बढ़ाना है। नीतीश कुमार अपना रिजाइन देंगे, उसके बाद बीजेपी आगे आएगी और नीतीश कुमार को अपना समर्थन देगी।